bringing you lights, camera, and action. A brand new show every Wednesday at 7 p.m. only on Avas Entertainment. Hello, good evening. I'm Kubrali, your host for tonight on my show Lights, Camera, and Action. First of all, I would like to wish you all a very happy new year. I hope you're enjoying the month of January. I know the weather has been very kind with us, so I hope you all are enjoying. So as you know, every time I get a new guest on my show, today a very interesting and amazing lady is sitting with us. So let me welcome Yumna Rahman. Hello Yumna, how are you? I'm good. How are you? I'm doing good. और वेता कैसा था? आज तो freezing rain थी. Yeah, but you know what? Honestly, Commute it's not ठीक that है bad. Commute was fine, and I actually went shopping a little. So like we walked. उस पे थोड़ा सा, तो it was not that It was bad. fine. Okay. It was fine. Yeah, Okay. I actually really like rain, and since Yeah. we're new here, so like I'm I kind of think enjoying it. Right? January जब से आया है, Yeah. weather has been good. You know, when I came here, like a lot of people told me that it's going to be really bad in winters, but I am like Yes. feeling so lucky that we have been really lucky this time. That Wow. the snowstorm, it just lasted for like 2 days, and like we're I pretty think okay only with in the weather. December during Yeah, just for Christmas, 2 days, right? yeah, It just was for a 2 bit. days. The weather was really Yeah. harsh, I would say, but Yeah. then अब तो इतना अच्छा हो गया है. बहुत अच्छा. बिल्कुल like honestly. it's kind of fall, spring, Yeah. right? Rain. UK You're का right. weather हो गया. बिल्कुल बिल्कुल. You know, अभी यही था कि like हम लोग enjoy इस तरह, तो हमारी बेटी अभी like पार्क में गए हुए थे, and she was okay. Like obviously she was whole covered and stuff, but she was enjoying. So we were like, the winters are Because not that it's bad. not too bad. It's not in minus. Plus में जा रहा है. Yeah. तो weather इतना Especially अच्छा for driving, you know, like it was raining, so I got a little scared in the morning, and I was like, हम जा रहे हैं बाहर तो गाड़ी skid and stuff. So my husband told me that no, the negative, it's not in negative, so nothing's gonna happen. So I was like, fine. So you know, we're commuting, so everything's great. Yeah, that's true. That's trtrue. और ये बताएं कि आप हो कहाँ से? अच्छा, basically I am from Lahore. Okay. And बस वहाँ से अभी recently हम लोग move हुए हैं around like 7-8 months में, and we're Really? Yeah. Wow. So you are a newcomer. Wow. Yeah. That's great to know. Thank you. So yeah, so we came here like, and things have been going great. तब से. How's it been? Like can you just tell me कि आपको क्या different लग रहा है from Lahore to Canada? ये सारा experience in 7 months कैसे कुछ बताना चाहेंगी? I would say कि different ज़रूर है, but जब हमने ये इरादा किया था ना कि अच्छा हमने कनाडा आना है, तो थोड़ा सा आपको माइंड अपने आप को पहले प्रिपेयर रेडी हो जाना पड़ता है ना, थोड़ा आपको अपने आप को रेडी करना होता है, ठीक है. जब हम यहाँ आए, आई वुड से कि जो लोगों ने हमें कुछ बताया तो शायद हम ज़्यादा ही डरे हुए थे कि अच्छा पता नहीं क्या होगा, काम करना पड़ेगा. लेकिन जब हम यहाँ आए, एक तो आई हैड लाइक थोड़ी सी फैमिली है, आई वुड लाइक से कि मुझे उनकी सपोर्ट थी. Good. With that being said, I would also say कि I am generally a very positive person. ठीक है, अब जिंदगी में एक चीज है, एक मूव ली है, तो obviously Enjoy करना चाहिए. things are going to change. Be happy. ठीक है, अगर आप पहले एक बहुत बड़े घर में थे, छोटे में आ गए, तो क्या फर्क पड़ता है यार? अगर if you're the person you're with and you're enjoying your time, it doesn't matter अगर आप Where you go, wherever you go. Exactly. ठीक है. Differences आए जब हम शुरू में आए, we didn't have a car. We went about in buses. हाँ, बहुत देर लगती थी, तो हम 3 के बजाय एक काम दिन में कर लिया करते थे. ठीक है, आई एग्री. तब समर्स था, लोगों ने मुझे कहा, मैंने विंटर्स में भी लाइक आई वुड गो अलोन टू एनी प्लेस नियर बाय, एंड देन आई वुड गो ऑन द बस, एंड मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती थी बस यहाँ पे, बिकॉज हमारे लिए बड़ा न्यू कॉन्सेप्ट था. तो आई वुड से कि लाइफ चेंज बहुत हुई. सफाइयाँ भी करनी पड़ती हैं, खाने भी बनाने पड़ते हैं, सब काम करना पड़ता है. उसमें से कुछ भी मैंने ऐसे नेगेटिव नहीं लिया. आई वुड जस्ट लाइक कि अच्छा, मतलब मुझे ये लगता है जितना आप सोचते रहोगे ना, अच्छा मैं वहाँ ये नहीं करती थी, आपने कंपैरिजन छोड़ देना है, छोड़ना है, और आपने फिर यहाँ की अच्छी चीज़ों को जो है ना वो करना चाहिए. अच्छा, यू नो, लाइक मे बी एवरीथिंग सो दैट 8 एंड एवरीबडी स्लीपिंग, मैं 10 बजे सो जाती हूँ. लाइक बैक इन लाहौर, लाइक आप जल्दी नहीं सो पाते बिकॉज कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, देयर सो मच दैट्स गोइंग ऑन. ठीक है, यहाँ अकेलापन ज़्यादा है ना. या तो यहाँ पे ये कि योर वीकडेज में यू कैन स्लीप अर्ली, एंड देन आप अपनी नींद पूरी करो, फिर काम थोड़ा सा कर लिया तो दैट्स ओके. और पसंद आ रहा है अभी तक तो ऑनेस्टली आई वुड से यस. ओके. तो ये बताएं कि वेदर रिलेटेड डिफिकल्टीज कुछ हुई हैं आपको? लाइक आई सेड शुरू में, I mean like I'm sure like कब आई थी आप, कौन से वेदर में आई थी? अप्रैल में. तो I'm sure like काफी और समर नहीं आया था, आने वाला था. आने वाला था, बट समर में टैन प्रॉब्लम बहुत आता था, because initially when I was like maybe when you like grow older you have to work on your skin. तो आप बिलीव करो, मैंने तो डिफरेंट टोट के तो पता नहीं मैंने क्या क्या करना शुरू कर दिया कि मेरी स्किन में कोई मसला है. बट फिर वो ठीक भी नहीं हुआ, और मैंने कहा लो जी, अब मेरा मतलब चेहरा जो रहता है ऐसा ही रहेगा. बट शुक्र है जब लाइक समर, तो टैन वाज वन थिंग दैट रियली रियली बॉदर्ड मी हियर. लेकिन वो मैंने अब देखा है कि नेक्स्ट टाइम से ये कि फिर आप अंदर ही रहो,
जाओ अगर आपने अपने चेहरे को बचाना है, वरना इट्स ओके, इट गोज अवे। दूसरा पे जब समर्स में थे तो लाइक आई सेड आई हैव अ वेरी एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव एनर्जी एंड लाइक आई ट्राई टू स्प्रेड पॉजिटिविटी अराउंड। जो अच्छी चीजें हैं वो बता दो, जो बुरी नहीं है, जो बुरी है उनके साथ यू नो कोप अप। वैसे आपने ना अच्छा टाइम पे यहाँ आए, क्योंकि यूजुअली लोग जो विंटर में आते हैं परेशान हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन पता है विंटर में लोगों ने मुझे कहा अच्छा अभी तुम समर्स में आई हो ना, अभी तुम देखना विंटर्स में तुम्हें ऐसा डिप्रेशन होगा ना, ये सारे समर्स में ऐसे ही कहते हैं। अच्छा जी विंटर्स आ गया, जब नवंबर आया तो मैंने कहा यार सीरियसली इस सर्दी की बात करते हो? सबने कहा दिसंबर का वेट करना। अच्छा जी दिसंबर भी आ गया, वो 2 दिन स्ट्रॉन्ग थे, उस दिन ठीक है घर बैठ गए, फिर अब जनवरी। मैंने कहा बस, मैंने कहा ये सब लाइक आई अंडरस्टैंड दैट यू नो द वेदर इज बीइंग नाइस है, बट अगर आप प्रॉपर्ली इक्विप्ड हो तो इट्स ओके। वैसे आपको पता है ये साल वेदर बहुत अच्छा रहा है, बहुत काइंड रहा है हमारे साथ। चलो बस फिर हमारी स्नो ज्यादा पड़ी है ना, कोई स्नो स्टॉर्म है एक दो। माय डॉटर वाज सो एक्साइटेड टू मेक अ स्नोमैन और लिटरली हमें स्नो ही नहीं मिल रही। मिली नहीं मिसिसागा में हमें स्नो, कि वो स्नो को देख के हम लिटरली गए, हम स्नोबॉल मेकर लेकर आए और अभी तक वो वैसे ही पड़ा हुआ है, बिकॉज़ स्नो ही नहीं थी। जब एक दिन पड़ी नहीं, लाइक चलो नेक्स्ट डे जाएंगे, तब तक मेल्ट हो चुकी हुई थी। तो चले वेट करेंगे, फरवरी भी आ रहा है, अभी खत्म ही नहीं होती ना। हमारे यहाँ ऐसे होता है कि फरवरी मार्च भी, कभी मार्च में भी स्नो पड़ जाती है। सो अभी तो हम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्नो एक्चुअली। पड़ जाएगी एक आधे। हम तो चाह रहे ना पड़े। हाँ, बट आई वुड से कि अगर हम ओवरऑल टोरंटो या ओंटारियो का देखें ना, तो वही वाली बात है, अगर आप प्रॉपर्ली इक्विप्ड हो इट्स नॉट गोना बॉदर यू सो मच। आपने जैकेट अच्छी पहनी हुई है, आपने ग्लव्स अच्छे पहने हुए हैं, आपने शूज अच्छे पहने हुए हैं, गाड़ियों में आप अगर हो ठीक है तो कोई इशू नहीं है इतना ज्यादा। You just have to manage yourself accordingly। ठीक है कि आप घर से निकल और जैकेट नहीं लेके जा रहे तो अब इट्स योर ओन फॉल्ट कि चलो मुझे क्या जैकेट करने की जरूरत है। ठंड तो ठंडी है तो हाँ, तो आपको अगर आप प्रॉपर्ली इक्विप्ड हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल। और ये पता आप करती क्या थी वहाँ पर, और क्या आपने वही चीज़ यहाँ पर स्टार्ट की है, या यू वांट टू चेंज योर प्रोफेशन? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है, बिकॉज मैंने 4 से 5 महीने ना इस चीज़ में बड़ा स्ट्रगल किया अपने साथ। तो बेसिकली पाकिस्तान में ना I was into social media management, I was into influencer marketing, ठीक है। और ये काम ना बड़ी मेहनत से होता है, बहुत नीचे से आप शुरू होते हो और फिर आप करते 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 फाइनली यू रीच समवेयर, यू लाइक चलो ठीक है। और वही था कि मैंने अपना एक कम्युनिटी शुरू की थी फेसबुक पे, ना स्टार्टेड ऑफ, और फाइनली अब आई वाज एट द पॉइंट दैट आई हैड लाइक ओवर लाइक 1 लाख फॉलोअर्स, ठीक है। तो फाइनली मैं पाकिस्तान में जैसे सेटल हुई तो मैं यहाँ आ गई, तो आई वाज लाइक कि ओके आई हैव दैट एक्सपीरियंस, तो मैं यहाँ कोई जॉब ढूंढ लेती हूँ, ठीक है। तो अब सिंस मेरी कम्युनिटी का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत लाइक नोटेड या ऐसा नहीं था जो मैं कंपनीज को कोट कर सकती थी, ठीक है। तो इनिशियली आई वुड से मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई, मैंने अप्लाई भी किया, बट मुझे कोई इतने अमेजिंग रिस्पॉन्सेज नहीं आए कंपनी से, ठीक है। एक बात थी, मैं डीमोटिवेट नहीं हुई थी। आई वाज लाइक नहीं आई, आई वांट टू डू समथिंग एंड आई विल डू इट, इट्स जस्ट गोना टेक सम टाइम। तो मैंने थोड़ा सा टाइम दिया। फिर मेरी एक बंदी से बात हुई तो उसने मुझे कहा लिसन, तुम पाकिस्तान में जो काम करती थी यहाँ क्यों नहीं करती? मैं यहाँ कैसे कर लूँ, मतलब मेरा पाकिस्तान में पूरा सेट है, मतलब यहाँ पे मैं शुरू से शुरू करूँगी, मेरी कौन सुनेगा? अब तो इतने बड़े बड़े ब्लॉगर्स, इतनी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहाँ के कहाँ पहुँच गए हैं। तो उसने मुझे कहा कि तुम कनाडा में नीश हो ना? मैंने कहा हाँ। माइनॉरिटी में भी हो? मैंने कहा हाँ। कहते हैं अगर तुम्हारे इंस्टाग्राम के 8000 फॉलोअर है इट्स गुड इनफ अगर वो जेन्युइन है। तो मैंने कहा है, बिकॉज कहाँ मैं लाख पे थी, ठीक है। तो जब 8000 वाला बात हुआ तो मैंने कहा यार मुझे कौन कंपनी मेरे पास आएगी, हु वुड वांट टू वर्क विद मी, ठीक है। बट शी सेड नहीं, तुम यहाँ की माइनॉरिटी में हो, ठीक है, आप कनाडा की माइनॉरिटी में, यू हैव द स्किल, डू इट। बस फिर वो करते करते मैंने साथ अपना अब वो शुरू कर दिया है, जिसमें आई एम मेनली फोकसिंग ऑन फूड रेसिपीज, बिकॉज आई फील कि वो हम लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट करते हैं। जब यहाँ आते हैं ना, अच्छा आई वॉज नॉट अ वेरी गुड कुक, कभी भी मैंने कभी पकाया ही नहीं। अब यहाँ आके तो ये कि चाहे अब आप एक चीज़ पका रहे हो, कहते यार वो अच्छी तो पकाओ, मतलब इतनी मेहनत कर रहे हो, आ रहा हो ना, मैं एक वो आलू गोश बिकॉज वो तो वैसे भी बन जाता है। तो मतलब कभी हमें कोई फिश ट्राई करी, कोई चाइनीज रेसिपी ट्राई करी, सो आई एम ट्राइंग लाइक फन स्टफ व्हिच इज ईजियर, बिकॉज लाइक आई सेड मेरे ना एक नेचर में चीज़ें, मुझे फटाफट चीज़ें बहुत पसंद है, ठीक है। मुझे ये नहीं होता कि बहुत ऐसा लोग शामी ऐसा, लाइक मैंने आते साथ ही इंस्टेंट पॉट खरीदा, आई कैन कुक, देर लगा के बस जल्दी बने। तो वो लाइक मैं फन रेसिपी साइट पे आ गई, फिर मैं फूड ब्लॉगिंग वाली साइट पे आ गई। फूड ब्लॉगिंग है, हाँ, लाइक बल्कि कल यहाँ के लोग इतने अच्छे थे, आई विल कम अप टू दैट लेटर, कि मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे उस पर एक होप नजर आई कि नो आई कैन डू इट हियर एज वेल, बिकॉज यहाँ के लोग ज़्यादा हेल्पफुल है, यहाँ की कंपनीज आपको बहुत अंडरस्टैंड करती हैं। सोशल मीडिया पे यहाँ के लोग काफ़ी मुझे लगता है कि एक्टिव होते हैं, एक्टिव। एंड एक चीज़ जो है ना, यहाँ पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरी पाकिस्तान में एक रूल था, व्हेन यू सपोर्ट समबडी टू राइज,
ट्रस्ट मी आप खुद ग्रो करोगे। मेरे लिए ये चीज़ काम की थी और मैंने यहाँ आके देखा इन्फ्लुएंसर्स, मैंने 2-3 को मैसेज किया, दे वर सो हेल्पफुल, दे वर लाइक अच्छा कम हम तुमसे मिलते हैं, विल हेल्प यू थ्रू, एंड दे डिड। ठीक है, तो मुझे एक बड़ी सपोर्ट मिली। तो एक मैंने ये काम शुरू किया, फिर यहाँ पे मेरी थी, उन्होंने मुझे एक जॉब का बताया कि आई नो योर स्किल फ्रॉम पाकिस्तान। तो यहाँ पे एक कंपनी थी, एजुकेशनल वेबसाइट थी, माई ट्यूटर पॉड के नाम से। अच्छा, आई हैव अ चाइल्ड, और वही वाली बात है कि अभी आई वांटेड टू वर्क फ्रॉम होम, बिकॉज मैंने पाकिस्तान में घर से काम शुरू किया, घर में काम करना शुरू किया। तो मुझे गोइंग टू ऑफिस, आई वाज रेडी फॉर इट, बट ऑब्वियसली आई प्रेफर्ड कि मैं वर्क फ्रॉम होम घर से जब करने का मौका मिले, व्हाई नॉट। तो मुझे कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई माय ट्यूटर पॉड पे घर पे काम करने की। एंड उसके बाद इट्स सो इंटरेस्टिंग दैट व्हेन आई वाज वर्किंग विद दैट कंपनी, तो मैंने उनको पिच किया एक आइडिया कि हाउ वी कैन हेल्प अदर वुमेन अर्न फ्रॉम होम, बिकॉज मैं वो चीज़ अंडरस्टैंड करती थी। ठीक है, उन्होंने सिंस आई एम एक मार्केटिंग कंसल्टेंट भी थी पाकिस्तान में, सो आई न्यू एग्जैक्टली कि मार्केटिंग किस तरह होती है और क्या हो सकता है। तो मैंने उनको खुद पिच किया, मैंने कहा व्हाई डोंट वी कम एंड एम्पावर वुमेन टुगेदर। ठीक है, जो लोग वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटीज आई है, वो हार्ड वर्किंग वुमेन है यार, लिटरली मतलब दे आर ट्राइंग टू पुट इन देयर एफर्ट। बस उनको पास ये है कि वो घर बच्चों की वजह से घर से नहीं निकल सकते। स्पेशली जब आप कनाडा आते हो, कुछ के पास लाइसेंस नहीं होता, दे वांट टू अर्न समथिंग, बिकॉज सर जीटीए तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो यू आल्सो वांट टू हेल्प योर हस्बैंड एंड लिटिल के थोड़ा सा उनकी भी हो जाए अपनी शॉपिंग। यार चलो सब छोड़ो, बंदे को यहाँ आके इस लाइक होता है कि बाहर जा रहा है तो शॉप समथिंग, तो आप कहता मैं क्या बेचारे को तंग करूँ, ही इज पेइंग ऑल अदर एक्सपेंसेस, तो ये मैं खुद मैनेज कर लूँ। तो आई केम अप विद दिस होल एफिलिएट प्लान विद देम कि जिससे औरतें घर पे बैठ के अर्न कर सकती हैं। आप हेल्प करती हैं औरतों को? I help them with the marketing strategies or zero investment. Like they don't have to pay anything. Oh, nice. It's just something that they that have to try. That is actually good to know. Usually ऐसे होता है जब कोई help कर रहा है तो they will actually charge and this and that. मैं उनको मैंने बताया ना, मेरा लाइफ का एक रूल रहा है। अच्छा। You help people grow or you will grow. ये जो हमें कॉन्सेप्ट है ना, कोई और ग्रो करेगा तो आप नीचे आओगे। नहीं यार, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, हर किसी के पास ग्रो करने का चांस है। आप अगलों को मौका दो। ठीक है, बस फिर देन आई स्टार्टेड ऑफ विद दैट जॉब, फिर स्ट्राइव टू इंस्पायर भी किया, एंड नाउ लाइक आई एम लॉन्चिंग दिस, सो आई एम डूइंग 3 थिंग्स एट अ टाइम। ओह नाइस। एंड नाउ आई एम लॉन्चिंग दिस डिजाइनर ब्रांड कपड़ों का, which I'm wearing right now. Nice. So we're gonna start like a lot of Eastern wear, because मैंने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे लोग इतने फेस्टिवल्स करते हैं, यहाँ पे तो दावतें ही नहीं खत्म होती। I feel यहाँ के लोग यही चलते हैं। Like literally मैं आते हुए like 5-6 कपड़े लेके आई, because हमें वहाँ पे माइंड में होता है अच्छा ईद है तो ईद के 2 दिन आपने कपड़े पहन लिए ईस्टर्न और बस फिर खत्म। नो, लाइक इतनी दावतें होती हैं यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे सारे तैयार होके आए थे कि मेरे पास कपड़े खत्म हो गए। फिर आई वाज लाइक ओके, लाइक यहाँ पे ईस्टर्न कपड़ों की भी पीपल नीड इट, बिकॉज यहाँ पे कहीं प्रॉपर शॉप्स में 1-2 हैं, बट वो वैरायटी नहीं है। ठीक है, एंड जो ऑनलाइन शॉपिंग, आई नो बहुत लोग आएंगे ऑनलाइन शॉपिंग हम मंगवा लेते हैं, बट जो एक फिजिकली प्रोडक्ट को देखने से यू कैन सी अच्छा ये प्लीज स्टिचिंग स्टाइल क्या क्वालिटी क्या है, दैट्स वेरी डिफरेंट। ठीक है, तो फिर मैंने अब ये 3 वेंचर्स ले के साथ तो आपने अभी लॉन्च नहीं किया? अभी आई हैव जस्ट लॉन्च्ड इट लाइक लास्ट वीक। हाँ, बट अभी ईद आ रही थी, so we're trying कि हम उसमें एग्जीबिशन। कोई नाम है उसका? नीसा, इट्स कॉल्ड नीसा, या इट्स ऑन इंस्टाग्राम। तो लाइक अब हमने वो लॉन्च किया, उसमें हम प्योर फैब्रिक्स एंड लाइक हम ज्यादा एक्सपेंसिव रेंज इसलिए नहीं कर रहे, बिकॉज आई नो हाउ यहाँ पे एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग। ठीक है, एंड लाइक आप $300-300 नहीं निकाल सकते यार एक उस टाइप पे, मतलब इतना तो आपका बचता ही नहीं है। ठीक है, तो इट्स समथिंग अच्छा, आप 1-2 गेटवेयर्स में गए, आपने वो पहना, स्मार्ट भी है, स्टाइलिश भी है, और सबसे बड़ी बात है जो मशीन में भी ढल जाए। क्योंकि इनिशियली शुरू में मेरे कपड़े तो बहुत इट्स नॉट टू हेवी और नॉट टू लाइट, जैसे आप एनीवे, या लाइक समथिंग वेरी कैजुअल, यू कैन जस्ट वेयर इट एनीवेयर। एक चीज और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो आम लॉन क्लोथ्स है ना, वो भी शायद इतने, क्योंकि घर में ना, हालांकि मैं पाकिस्तान में लाइक बिल्कुल 3 पीस में थी, यहाँ पे घर में आप इतने लेट बैक होते हुए कभी बार अपने पजामा शर्ट से निकलते हैं, बिकॉज ना कोई आ रहा है ना आप कहीं जा रहे हो, जैसे ऐसे मैं रिलैक्स हूँ। तो वो लॉन के कपड़े भी इस्तेमाल नहीं होते, बिकॉज बाहर आप जाओगे तो यू डोंट वांट टू वेयर लॉन, बिकॉज आइदर यू आर गोइंग टू समबडीज हाउस, यू वांट टू वेयर समथिंग फॉर्मल, और घर में आपका पजामा शर्ट से निकलने को दिल नहीं करता, ऐसे तो पहन नहीं सकते घर में। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने ये फिगर आउट किया कि मतलब कोई ऐसे सेमी फॉर्मल हो जो आपके थोड़े रीजनेबली प्राइस्ड भी हो, एंड दैट यू कैन वेयर टू डिनर्स। ऑफ कोर्स और ये एक्चुअली कपड़े काफी अच्छे होते हैं, मुझे ऐसे ही पसंद आते हैं ज्यादा, क्योंकि आप कहीं भी पहन सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि घर या उसमें तो आपको स्वेटर जीन्स यहाँ पे बहुत मिल जाएंगी, वो वाली चीज आपको यहाँ नहीं मिलती। सो वही वाली बात है, इट टुक मी 6 months। ये सारे कहेंगे अच्छा आते साथ इसने ये 3 चीजें कर ली। अच्छा, विद दैट बीइंग सेड, मैं ये नहीं कह रही कि मेरी ये 3 चीजों से मैं इतना कमा रही हूँ, क्या नहीं, अभी मेरी इनकम बहुत मिनिमल है, बट आपने लाइफ में एक चीज याद रखनी है कि स्लोली आप ग्रो करते हो। ठीक है, मेरा अभी ये नहीं कि अच्छा मैं महीने में $500 कमा लूं, मैं नहीं कमा सकती। स्टार्ट करते थोड़ा ना, स्टार्ट है, आपने अपनी बेस्ट देनी है,
फिर रिजल्ट ना आए कोई 5-6 महीने बाद, तब आपको अच्छा यार शायद ही मेरे पास की बात नहीं है। बट जो हम करते हैं ना, हम इन्वेस्ट करते हैं, हमें होता है यार अच्छा कोई रिटर्न नहीं आ रहा, चलो साइड पे करो, मैंने नहीं करना, ये तो होता ही नहीं, ये तो लॉस हो गया। नो, ठीक है, आपने अब मैंने 3 चीज़ों में अगर अपने आप को ये अड़ाया हुआ है, इसलिए अड़ाया हुआ है बिकॉज आई एम गुड एट मार्केटिंग। मुझे पता है यहाँ पे एक डिमांड है चीज़ की, एंड आई एम गोना वर्क हार्ड, आई एम गोना वर्क इन पीपल्स इंटरेस्ट। जब आप लोगों के साथ वही वाली बात है, मिल के उनके लिए काम करते हो, Right. तो आपको ऑटोमेटिकली ग्रोथ मिलती है। चलिए आपसे ना ब्रेक के बाद बात करते हैं। Alright. So let's take short break and we'll be back with Yumna. Hello, welcome back to Lights Camera Action. I'm your host Kubra Ali and हमारे साथ बैठी हैं आज Yumna. Welcome back Yumna. Thank you. तो Yumna ये बताएं, आप जब मूव जो हुई है फ्रॉम लाहौर टू या कनाडा और बिल्कुल 7-8 महीने हुए हैं, तो आप कुछ अपनी कोई फेवरेट कोई ऐसी चीज़ आप पसंद आई है कनाडा की, कोई अच्छी चीज़ आपको क्या आप बताना चाहेंगी कि इन कंपैरिजन लाहौर, या उसको कंपेयर ना करें, पर कोई अच्छी चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी कनाडा की? मुझे यहाँ की जो है ना मुस्लिम कम्युनिटी जैसे मिलती है, लाइक यू नो हमारे सिंस आई लिव इन मिसिसागा, तो यहाँ पे मस्जिद बहुत है, ठीक है। अच्छा। मैं जैसे देखती हूँ जैसे बच्चों को वो लेकर आते हैं मस्जिद में, हाउ इट्स लाइक सच अ स्पेशल प्लेस फॉर देम, वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आई फील ये एक चीज़ ना, लाइक पाकिस्तान में मेरी बच्ची शायद मस्जिद बहुत कम गई है, बट यहाँ पर लोग एफर्ट करते हैं ले जाने के लिए। शी लुक्स फॉरवर्ड कि अच्छा हम सैटरडे को अम्मा मस्जिद जाएंगे, अच्छा यू नो आई वांट टू गो, एंड वहाँ जाके एक ओवरऑल था कि अल्लाह ताला का घर है। आई फील कि वो जो एक यहाँ पे इसको एक कनेक्ट, हालांकि लोग कहते हैं कि जब आप बाहर शिफ्ट होते हो ना, तो एक चीज़ है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपके बच्चे की वैल्यूज इंटैक्ट रहे। एंड आई फील कि यहाँ पर जिस तरह मतलब इतनी माँ इतने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई होती है वहाँ पे, कि यूर लाइक यार मतलब यू नो दे मेकिंग एन एफर्ट, और वो एफर्ट नजर आती है। वो सारे आपस में एक दूसरे को जिस तरह आप मिल रहे होते हो, नंबर एक्सचेंज होते हैं। आई नो ऑफ दिस मस्जिद, वो हर फ्राइडे को एक वन डिश पार्टी करता है। देखो कोई नया आता है, ठीक है, मैं तो लकी थी कि चलो मेरी यहाँ पे फैमिली थी, जिनकी फैमिली नहीं होती, ठीक है, उनके लिए इतनी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो मस्जिद में जाके अपनी तरह के लोगों को आप मिल लेते हो, तो बंदे का एक दिल बहल जाता है। तो दिस इज one thing that I really like about GTA एरिया के इतनी मस्जिद हैं और इतने वेलकमिंग लोग हैं वहाँ पे, और इस तरह की एक्टिविटीज। एंड वी डोंट थिंक अबाउट वेदर एनीथिंग, अगर जाना हो तो चले जाएंगे। कुछ मैं बता रही हूँ आपको, जब इवन लाइक बारिश वगैरह भी कभी जुम्मे वाले दिन होना, तो जाना हो तो भी लोग होते हैं, एंड बच्चों को भी लेके आते हैं, एक्टिविटी से भी लेकर आते हैं। तो बिकॉज वही वाली बात है ना, दे वांट टू मेक दैट कनेक्शन, और बच्चे एंजॉय करते हैं यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे बस मैं देख रही थी कि यहाँ पे प्रॉपर क्लासेस है, कुछ मस्जिद में छोटा छोटा प्ले एरिया भी बनाया हुआ है, यू नो फॉर मदर्स कि वो भी करे। तो इट्स मोर लाइक कि हम लोग बच्चों को एनकरेज करते हैं ना। हाँ, इट्स नॉट बस मस्जिद है नमाज पढ़े निकल गए, नहीं, आप आओ यहाँ, आपकी एक्टिविटीज हैं, मतलब डिफरेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। यस दैट्स वन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट। तो उससे क्या होता है, बच्चों को भी एनकरेजमेंट मिलती है, पेरेंट्स दे डेवलप लव फॉर द रिलीजन, एंड दैट्स समथिंग सो इम्पोर्टेंट कि जो चीज आप एक बच्चे को प्रेशराइज करते रहोगे ना, उसके जहन में होता है, लेकिन जब उसका एक प्यार पैदा हो जाएगा ना, वो प्रेशर इज नेवर गुड, वो मोहब्बत आना चाहिए। yes, वो मोहब्बत इज सस्टेनेबल, और उससे आपका बच्चा एक्ट नाइस। और कोई ऐसी चीज आपको जो सही अच्छी नहीं लगी कनाडा में? यार यहाँ पे घर बहुत महंगे हैं, लाइक महंगाई, आई वुड से लाइक ये आप ही सब कह रहे हैं, लाइक टू थिंग्स, एक तो महंगा बहुत है, आई वुड से इवन ग्रोसरी इज वेरी एक्सपेंसिव, इट्स बीन एक्सपेंसिव सिंस आई थिंक फ्यू इयर्स और समथिंग। ग्रोसरी बहुत एक्सपेंसिव है। एंड जब हम आए थे, अच्छा हमने एक चीज बहुत स्ट्रगल की थी, सिंस हमारी कोई हिस्ट्री नहीं थी ना, तो हमें लाइक अगर हमें एक अपार्टमेंट अच्छा लगा है, ठीक है, वो हमें नहीं मिलेगा बिकॉज हमारी हिस्ट्री नहीं है। भाई हम नए आए हैं, हमारी कैसे हिस्ट्री होगी, आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे पहले क्या सड़क पे नहीं रह सकते, राइट? आई डोंट नो, मतलब हालांकि कुछ ऐसे लोग भी थे कि जो मुस्लिम ओनर्स भी थे, बट देन आई आल्सो अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव। उन्होंने कहा अगर आपने आना है, मतलब 6 महीने का एडवांस दो यार, आप नए एक मुल्क में आए हो, ठीक है, how can you expect somebody to do that? हमें इतनी rejections face करनी पड़ी थी just to get a roof on our head. वो एक setback था, like I said, I don't talk a lot about it because वही वाली बात, जब कोई नया आ रहा होगा वो उससे घबराएगा। देखो बैठी भी तो हूँ अभी रूफ के अंदर, ये बात नहीं है, लेकिन मुश्किल सा था ये पार्ट, ठीक है, बिकॉज क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, वो आपको आप ओन नहीं कर सकते आपकी प्रॉपर्टी, राइट? यहाँ अभी फिलहाल तो यहाँ पे ओन का कोई आई थिंक है ही नहीं, या तो फिर आप बहुत क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी लेकर आओ, बट इवन फॉर रेंटिंग, लाइक इवन इफ यू हैव द मनी दे विल गेट, अच्छा बेड लग रही है, जितना रेंट है उससे ज़्यादा में नहीं। तो हमें ये एक चीज़ थोड़ी फील हुई है कि यहाँ पे लिविंग कॉस्ट इन GTA एरिया आई वुड से इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। एक्चुअली तो वो एक चीज़ मुझे थोड़ा सेटबैक लगी कि जब यहाँ पे नए लोग आते हैं ना, बेचारे वैसे ही इतने डिस्प्लेस्ड होते हैं, ठीक है, फिर मोस्टली लोग बेसमेंट में जाते हैं, फिर
उनके लिए वो बेसमेंट में ना सनलाइट आती है ना वो पूरा, तो सही है। उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है टू मैनेज एवरीथिंग। तो दैट्स वन थिंग, मुझे थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा इनको इमिग्रेट के लिए ना थोड़ी अपनी ईजी करें, थोड़ा क्रेडिट हिस्ट्री की प्रोग्राम्स बहुत हैं बट दे आर नॉट इनफ। अपना एक एक्सपीरियंस बताएंगे आप मूव होते टाइम कि कैसा रहा वो एक्सपीरियंस आपका? हाँ, अच्छा, लाइक आई सेड क्योंकि इट शुड बी फ्रेश बिकॉज़ जस्ट बीन 7 months। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, इनिशियली जब आप होता है ना तो आपको होता है अच्छा अपना नया घर होगा, आप सेट करोगे, लेकिन वही वाली बात है कि यहाँ पे फर्नीचर थोड़ा सा एक्सपेंसिव इन अ वे फॉर अ न्यू इमिग्रेंट है। आप सोचो फॉर लाइक 2-3 months we just had 2 chairs in our lounge. I was okay with it. Like I said, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि as long as you're enjoying your move That's so and you're sweet going. of you that you're actually you're saying all about that because लोग usually बोलते नहीं हैं। आपके पास अगर मेरे पास पहला सोफा अगर 3 महीने बाद आया था, अब मेरा घर वैसे सोफा से भरा हुआ है लेकिन बात ये है क्योंकि शुरू में थोड़ी होती है, शुरू में था मतलब कि and I did not, I was like अच्छा यार वेफेयर पे चलो वेट कर लो, कोई मैंने अपनी कलर स्कीम नहीं, अच्छा यहाँ थोड़ा ऑफ पे लगा हुआ है, ये ले लेती हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। 3 months बाद सोफा है, अभी हमने लास्ट मंथ बेड लिया है, ठीक है। वी वर ओके विद ऑल दीज थिंग्स के मूव है यार, तो ग्रेजुअली आई वुड से कि अपने आप को ग्रेजुअली मूव करो यार। अगर 4 महीने मेट्रेस पे सोचोगे क्या फर्क पड़ता है, सोना ही है, नींद आ रही है तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ महीनों की बात है। कुछ लोग आते साथ ना, एक तो कंपैरिजन वाली बात मैं इसलिए कहती हूँ, आप पाकिस्तान में को अच्छा मैं तो कमरे में सोती थी, वॉशरूम मेरे साथ था, मैं बेड पे थी, मेरे बेड के साथ साइड टेबल्स भी थे, मेरे साइड टेबल अभी तक नहीं लिए, एंड आई एम जस्ट लाइक अब तो यार जरूरत भी नहीं है, बस खैर है, ठीक है, यू नो। फिर ग्रेजुअली आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज सेट करनी है और अपने आप को आपने 15 साल पुराने लोगों से कंपेयर नहीं करना यार, वो ये स्ट्रगल गुजार चुके हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा वो पोजीशन में तो मैं क्यों नहीं होगी, तो बहुत बुरा बोल के हमें सपोर्ट नहीं कर रहे टाइम, बिकॉज वो भी वैसे ही गो थ्रू किए हैं जैसे आप कर रही हैं। लाइक एंड टेलिंग, अभी जो बहुत लोग देख रहे हैं कहेंगे देखो लाइक इसको 3 काम है और फिर कह रही है मतलब मैं अब शुरू किया 5-6 महीने बाद, अभी भी लाइक आई सेड मैंने कपड़ों वाला लास्ट वीक लॉन्च किया, मुझे नहीं पता वो कैसे होना, हमारा स्टॉक आ गया है, वी गोना पुट थिंग्स अप, वी डोंट नो द रिस्पॉन्स, ठीक है। हमारी इन्वेस्टमेंट लग चुकी हुई है, जिंदगी में रिस्क लेना है, हार्ड वर्क पुट करना है, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ देना है। और यूं ना आपने एक बार ये मैंने जब देखा था, आप पोस्ट डाला था ना मेकअप आर्टिस्ट की आपको जरूरत थी, तो वो किस चीज के लिए आप? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली देयर इज अ वेरी स्वीट पर्सन इन अमेरिका, युसरा, तो शी इज लाइक यमुना तुम नई आई हो कनाडा में, तो यू नो आई वुड लाइक टू हेल्प यू कि तुम अपने फॉलोअर्स को ना $200 का मेकअप मेरी तरफ से दे दो, लिटरली नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। तो मैंने कहा अच्छा लाइक $200 का, व्हाई डिड शी डू इट, शी वांटेड टू सपोर्ट मी, ठीक है, वही वाली बात है। अब मैंने कहा यार कि इतना मेकअप तो किसी मेकअप आर्टिस्ट को मिल जाए तो उसके लिए कितना अच्छा होता है। देखो हम नई यहाँ पे इतना लोग फ्रॉम होम शुरू करते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट किसी के पास नहीं होती यार कि वो इतना मेकअप या वो खरीद लें। तो आई वाज लाइक व्हाई नॉट, कि मैं अगर मेकअप की बात कर रही हूँ तो मैं मेकअप आर्टिस्ट को क्यों ना सपोर्ट करूँ। अगर मेरे 8,000-9,000 फॉलोअर्स हैं, ठीक है, she have a chance to win that makeup as well, and then I'm also sharing तो आप उनके साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं? मैंने इस तरह का कोलैबोरेशन किया था कि मैंने उनसे कहा था कि आप लोग जो भी कोई मेकअप आपका फेवरेट है, जाहिर है मेकअप आर्टिस्ट को मेकअप तो बहुत पसंद है, आप शेयर करो एंड आई विल री-शेयर इट, ठीक है। यहाँ पे जो लोग मेकअप आर्टिस्ट को ढूंढ रहे होंगे, इफ दे लाइक योर वर्क दे विल कॉन्टैक्ट यू, ठीक है, सिंपल। उसमें उनको 2 चीज थी, एक उनको रीच भी मिल रही थी और सेकेंडली दे कैन विन लाइक $100 का मेकअप जो उनको एज ए बिजनेस में एक इन्वेस्टमेंट डल जाएगी, ठीक है। तो लाइक आई सेड कि आप उनके साथ इकट्ठे चलो तो इक्वली ग्रो करते हो आप। इतने ज़्यादा यहाँ के जो थे वो जो मेकअप आर्टिस्ट है, दे कॉन्टैक्टेड मी, दे शेयर, और कुछ को आपको पता है लाइक पता है हर चीज़ सेल्स नहीं होती। मैं एक बात बोलूँ, अगर मैंने अभी ये पहना, अगर मैं अपना स्ट्राइप एंड स्पायर के बारे में बात करती हूँ ना, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करूँगी अच्छा कल मेरे साथ कोई कोलैबोरेट कर ले। अगर मेरे कपड़ों की बात है, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करी कि कोई मेरे 15 जोड़े ले ले। कभी के बार एक फॉलो, एक लाइक, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना अफेक्ट डालता है एक पेज के लिए। अगर उस मेकअप वाली को मेरे थ्रू 2 लाइक्स भी मिल रहे होंगे ना, वो कह रही होगी यार अच्छा मुझे इससे 2 लाइक्स मिल गए, क्या उसका तो कुछ एक आध फॉलो भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। इतनी छोटे छोटे से लोग खुश होते हैं और हम लोगों को होता है अच्छा हमसे कोई ना ले ले, यार उसको लाइक मिलेगा, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। अगर आप किसी को एक शाउट आउट दे दोगे कि भाई चलो ये मेकअप आर्टिस्ट का काम तुम खुद देखो, या अगर आपके थ्रू उसको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी तो ट्रस्ट मी आपका रिस्क नहीं कम होना। जब तक आप ये रियलाइज नहीं करोगे ना यार कि किसी को हेल्प करने से आपका कुछ नहीं जा रहा, तो यू विल कीप ऑन डूइंग इट। इनफैक्ट जब आप किसी की हेल्प करते हो तो आई हैव, मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने जब किसी की हेल्प की है कुबरा, मेरा रास्ता ऐसे बना है कि मैं कहती हूँ ये कैसे बन गया। वो तो बात ही है ना कि आपने किसी के लिए करना है तो खुदा आपके लिए कर देगा। खुद बिल्कुल करते हैं। मेरे साथ तो ऐसे दफा हुआ है, कभी कभी रोंटे कर जाते हैं यार
अच्छा I know. इसलिए हुआ कि मैंने इसको हेल्प किया था, उसी टाइम में you'll get it, you'll get it. ओह कुछ ना कुछ हो जाता है, It'll happen to you. अब मुझे ये बताएं, जैसे आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं, आप एक लेडी हैं और ऑब्वियसली आप अभी जैसे आप बात कर रही थी कि मेकअप आर्टिस्ट को आप हेल्प कर रही हैं, ये सब सारा उनके साथ कोलैबोरेशन में लगी हैं, मार्केटिंग में, तो मुझे ये बताइए जो वुमेन एम्पावरमेंट है, मैं आपके साथ वो बात करना चाहूंगी अभी, ठीक है, तो वो क्या है? अच्छा, बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट वही वाली बात है ना, दो किस्म की होती हैं, एक आप किसी को फाइनेंशियली स्टेबल कर दो, एक आप किसी को इमोशनली स्टेबल कर लो, ठीक है। इफ़ यू थिंक अबाउट मी, जो मेरा ब्लॉग है ना इंस्टाग्राम पे ट्राई टू इंस्पायर, उसमें मैं ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखाती हूँ। विद दैट बीइंग लोग सोचते हैं यार इसकी लाइफ बहुत नहीं, अच्छी अच्छा है, वैसे पता कुछ है नहीं, मैं बहुत ज़्यादा अपने उस पर, तो मेरी जो कभी पोस्ट वगैरह होती है ना, मैं उसमें बहुत कहती हूँ कि प्लीज़ अगर मैं अपनी बैड साइड या अपनी डाउनफॉल्स के बारे में नहीं बता रही, इसका मतलब ये नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ यार कि कीप गोइंग एंड जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू डोंट हैव। मैं कहती हूँ आपके पास फ़ोन है, आपके पास इंटरनेट है ना, यहाँ पे लोग हैं जिनके पास सोने के लिए घर तक नहीं है, ठीक है। आई नो हमें अपने मसले सबसे बड़े मसले लगते हैं, ठीक है। जब आप उस चीज़ से फोकस करना शुरू करते हैं, आपको छोटी बात बताते हो, कभी कभार होता है ना कि आपके घर कोई मेहमान आते हैं तो रात को आप छोटी सी बातें बर्तन होते हुए फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हो यार कि क्यों मैंने बुला लिया, यू नो, अब सारे सो रहे हैं, आई एम वर्किंग, और फिर मैं कहती हूँ एक सेकंड युमना, मैं अपने आप को सेल्फ टॉक करती हूँ, युमना एक सेकंड, डिड यू हैव फन विद देम? यस आई डिड। तुमने वो टाइम एंजॉय किया? हाँ। तो अब किस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन है? आधा घंटा करो, जाके सो जाओ। दिस वर्क्स ऑन मी कि भाई चुप करो कि किस चीज़ की वाइन है, इतना एंजॉय किया 3 घंटे, अगर आधा घंटा सिंक के सामने खड़ी हो गई हो तो उस 3 घंटे को भूल गई हो। वो वाली बात है कि उस 3 घंटे को हम अच्छी चीज़ को ऐसे भूलते थे, ये तो होना ही था, ये तो पार्ट था हमारा, बुरी चीज़ को हम बहुत हाईलाइट करते हैं। तो एक तो ये वाली बात है कि इमोशनली किसी को करेंगे ना, मसले यार हर किसी, आप यहाँ बैठी हो ना, मुझे नहीं पता आपके पीछे क्या मसले हैं, यू आर स्माइलिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, मैं यहाँ स्माइल कर रही हूँ, किसी को मेरे मसले नहीं पता होगा। ये बात नहीं मैं कहूँगी कि आप उसको इग्नोर करो, आप उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। अच्छा यार मेरा ये मसला है, लाइफ में एक चीज़ याद रखो, आपका किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं है। मैंने अपनी मूव से जो एक चीज़ सीखी है वो ये, आपकी किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं है, आपके लिए लिखी हुई है। हाँ, आप दुआ करो एंड जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू वांट टू। जो लिखा हुआ है वो मिलेगा, जो नहीं लिखा हुआ मैं कहती हूँ ज़मीन पर रगड़ के पैर रगड़ो, तो नहीं मिलेगा। और इसमें रोने वाली कोई बात है नहीं। हाँ, मैं कहती हूँ रोना आता है, रो भी लो, इट्स बेटर। अगर मैं रोना था आप रो लो कि भाई अच्छा यार नहीं हुआ, बट देन सोचो कि कोई बात नहीं, मेरे लिए बेहतर है, मेरे लिए बेहतर है, ठीक है। एंड स्टैंड फॉर योरसेल्फ एंड थिंक अबाउट व्हाट यू हैव। जब आप ये सोचोगे ना यार अच्छा ये नहीं है, लेकिन देखो मैं छत के नीचे, अच्छा जॉब है, चलो चाहे और जॉब है तो सही, यहाँ पे लोगों को और जॉब भी नहीं मिल रही, ठीक है। इतना है कि चलो आई हैव किड्स, आई हैव नॉर्मल किड्स, यू नो, स्कूल जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। यूजुअली ऐसे होता है ना, मॉम्स के ग्रुप्स में मैं हूँ तो उसमें कितनी मॉम्स जो अभी अभी मूव हुई हैं, ये इतनी फ्रस्ट्रेटेड, लिटरली दे आर क्राइंग ऑन दी थिंग, अभी अभी आए एंड वी यू नो आई वांट टू जस्ट गो बैक दिस एंड दैट। तो जब वो मैं देखती हूँ कि लोगों के जवाब भी बड़े अच्छे होते हैं, यहाँ की जो लेडीज हैं, जो दूसरी मॉम्स हैं, they support them, you know, they say you know what, just don't think it's just, you know, in the beginning, it's just the beginning। बिल्कुल, ये हो जाती है इमोशनल सपोर्ट। हाँ, जहाँ तक आती है फाइनेंशियल सपोर्ट, उसमें ये कि लाइक आई टोल्ड यू कि मैंने जिस कंपनी के साथ काम स्टार्ट किया, माय ट्यूटर पॉड, मैंने उनको सबसे पहले बात की कि मैंने कहा यू नो लेट्स स्टार्ट दिस एफिलिएट प्रोग्राम, जिससे यू नो वुमेन कैन कम टुगेदर एंड दे कैन आल्सो अर्न फ्रॉम होम, ठीक है। ठीक है, देखो कोई भी आपको ऐसे पैसे नहीं देगा, यू हैव टू वर्क हार्ड। लाइक आई सेड, अगर मैंने ये 3 प्रोजेक्ट इस्तेमाल किए, मुझे पता है मैं कितनी मेहनत करती हूँ, ठीक है। मे बी देयर आर टाइम्स मैं किस दिन 2-2 3 घंटे सोती हूँ सिर्फ, लेकिन अब आज से 1 साल बाद अल्लाह करे मेरा इतना हो जाए तो कोई भी ये अगर अच्छा उसको 3 चीज़ें चल रही है, उसको क्या मसला है। किसी को मेरा वो 1 साल नजर नहीं आएगा जब मैंने व्हेन आई वाज नॉट स्लीपिंग एट नाइट एंड आई वाज ऑल आई वाज थिंकिंग अबाउट, या वो किसी को याद नहीं रहता। वो सारे कहते हैं अच्छा करते क्या, कुछ भी नहीं करते, बस कपड़े बनाए, कर दिया लॉन्च, अब बिक रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। पीछे की जो हमारी पीछे वो कोई नहीं देखता, ठीक है, वो आपको वो भूल जाते हैं। तो 2 चीज़ें तरह आप पेमेंट को करते हैं, एक इमोशनली और एक आप उनसे कर सकते हो फाइनेंशियली। आई एम ट्राइंग टू डू बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो उसमें यही है, प्लस आई कभी कभार पीपल जस्ट वांट क्या कोई सुनने वाला हो। पता है कभी कभार मैं ये भी कहती हूँ कि इतने लोग कभी मैसेज करते हैं, पता है कभी कभी इतने लोग होते हैं मुझे मैसेज कहते हैं अच्छा हम ना कनाडा आ रहे हैं तो ये पता है मैं उनसे एक 15 मिनट की बात करती हूँ, फिर मैं उनसे कहती हूँ पता है लाइक इफ़ यू वांट एनीवे टू टॉक आई एम हियर। वो मुझे कभी कॉल नहीं करते घबरा, लेकिन सिर्फ उनको ये वर्ड्स ही अच्छे लगेंगे उनको। मैंने ये चीज़ देखा कि शायद वो मुझे कभी मैसेज भी नहीं करते अब, लेकिन उनको सिर्फ पता है यार कि हमें एक बंदी ने कहा था कि आपको कोई इश्यू हो कुछ आप मुझे फ़ोन करना। मैं उनको ये गारंटी नहीं करती कि मैं ये नौकरी दिलवा दूंगी, मैं ये मसला हल करा दूंगी, नो। तो एटलीस्ट कोई टॉक करने के लिए भी अगर हो ना तो हां मेंटली सुकून हो जाता है। वेंटिंग वर्क्स कि वी आर नॉट अलोन इन दिस, ठीक है। द रीजन
why I am being so open कि अच्छा यार मेरे घर में इतनी देर ये चीज़ नहीं थी या ये चीज़ नहीं थी, that is because it's okay and I'm okay to talk about it. अगर नहीं थी तो क्या इसमें ऐसी बात होगी, नहीं थी तो भाई. अच्छा, I had guests still coming up, हम ज़मीन पे बैठते थे, हम पता नहीं बर्गर पार्टी से पता नहीं क्या पार्टी थे, हम कहते थे यार फर्श पे बैठ जाओ, गद्दे होते थे यहाँ बैठ जाओ, कि चलो. आई हैड फन. इसलिए ये था कि मैंने अपनी चीज़ पे हाय मेरे घर लोग आ रहे हैं, सोफे पे नहीं बैठ रहे, तो क्या फ़र्क पड़ता है. आई नो. ठीक है, दैट मीन्स कि आपके इर्द गिर्द कितने जेन्युइन लोग हैं कि दे डोंट केयर कि आपके घर में क्या है क्या नहीं है, एंड दे कमिंग फॉर यू. या ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है. पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में रखें, हमेशा सोचें कि आपके पास क्या चीज़ है इंस्टेड ऑफ क्या नहीं है. और दूसरा, अपने आप को थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल करने की कोशिश करें. फाइनेंशियली स्टेबल करने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी. कोई भी चीज़ आपको प्लेट में नहीं मिलेगी. आपको आप किसी बंदे को भी देखें ना जो अर्न करे, जो आपको लगता है अच्छा यार ब्लॉगर है, क्या करती है, बस वीडियो लगा देती है, बस कंटेंट लगा देती है. ओह, यू हैव नो आइडिया कंटेंट में कितनी देर लगती है. सही है. 2 दिन लगते हैं कभी कभी हमें सिर्फ उसको एडिटिंग करने में, उसको ठीक करने में. और उस पर हम श्योर नहीं होते क्या रिस्पॉन्स है. कभी बार लोग बैकलैश भी करते हैं, ठीक है, वो भी हम कोप अप करते हैं. पॉजिटिव दोनों होती है ना. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है युवना, कितना अच्छा लगा आपसे बात करके. मैं और बात करती पर टाइम जा रहा है, हमें करना पड़ेगा. बट यू आर वेरी, आई मीन आई वुड से वेरी जेनरस, वेरी नाइस पर्सनालिटी. इट वाज नाइस मीटिंग यू एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माय शो. आपने मुझे ये चांस दिया, वरना होता है ना यूट्यूब के लोग नए होते हैं, लोग घबराते हैं, अच्छा यार अभी नहीं आई है, पता नहीं लाइक कैमरा में बोलेगी क्या बोलेगी. बट आई एम सो आई वुड से थैंक यू कि आप मेरी शो में आई, क्योंकि आप बहुत प्यारा बात करती हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं. जो न्यू कमर्स हैं उनको आपका ये शो देकर आई थिंक बड़ी हेल्प मिलेगी. बल्कि मेरा जो ब्लॉग है स्ट्राइव टू इंस्पायर, नॉट बेशक मुझे फॉलो ना करो यार, अगर कोई हेल्प चाहिए मुझे बेशक मैसेज कर दो यार कि ऐसे ऐसे है, बिल्कुल किस तरह आप हमारी हेल्प कर सकते हो. अच्छा सॉरी यार, बहुत लंबा प्रोसेस है. मैं कोई इमिग्रेट कंसल्टेंट नहीं हूँ कि मैं आपको कहूँ आप ये कर दो आप आ जाओगे. आई कैन गिव यू वेबसाइट्स कि अच्छा यार हमने ये फॉलो किया. आई कैन टेल यू अबाउट ग्रुप्स. रिसर्च आपने खुद करनी है. ये नहीं होगा कि हम आप कनाडा कैसे हैं, मैं कहूँगी अच्छा अपना पासवर्ड भेजो, मैं स्टैम्प लगा के भेज रही हूँ. इसलिए उसका भी टाइम होता है, टाइम है, प्रोसीजर है यार. उनको एक एजुकेशन चाहिए होती है. आपकी वो एजुकेशन नहीं है तो बिकॉज कनाडा में सर्वाइव करने के लिए मुझे लगता है यमुना को फिर से मुझे बुलाना पड़ेगा नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने के लिए, ये टॉपिक पे कि ये इमिग्रेशन कैसे लेके. बट ये नहीं पता है, वो तो सारे पूछते हैं मुझे. लाइक ऑनेस्टली मेरे हस्बैंड ने कि बट बात वही है कि वेबसाइट पे सब कुछ लिखा हुआ है यार. काम करना है. अगर वो आपसे आपकी पेज से जो मांग रहे हैं पिछले 3 महीने के, तो अपनी कंपनी के पास जाओ, निकलवाओ, उनको भेजो अपलोड करके. ये नहीं होगा कि somebody else is going to do it for you. Of course. मेहनत है, मेहनत करो तो हो जाएगा. के लिए मेहनत. Yes, बिल्कुल. Thank you so much युवना. Thank you so much. अच्छा लगा आपसे बात करके. अब हम इजाजत लेंगे हमारी ऑडियंस से भी. So thank you for watching. I'll be back next week with another guest, another interesting guest. Until then, good night, and I hope you all the best for your upcoming days, and stay healthy, stay happy. Thank you. Hi, I'm Kubrali. I'm bringing you lights, camera, and action. A brand new show every Wednesday at 7 p.m. only on Awaz Entertainment.